Assalamu alaikum, मैं हूं मोहम्मद Usama Ali and welcome to Parkport episode 2. Today we're going to discuss something that is very important, short-term rentals. पाकिस्तान की accommodation industry, hospitality industry के अंदर एक नया addition है in terms of Airbnb. Airbnb primarily दुनिया भर के अंदर तो बहुत ज़्यादा advanced उसमें चली गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर it's kind of an early stage adoption अभी चल रही है पाकिस्तान में. We have Kausar on board. Kausar has worked in multiple organizations and companies pertinent to related to short-term rentals, and now he is running his own show in short-term rental industry. First of all, Kausar, thank you very much for coming Thank you to for our having me. platform. सबसे पहले बुनियादी चीज, what is short-term rental? Starting from what's short-term rental, what it really is, and to break down into a layman language, short-term rental is kind of कि for instance आपका अपार्टमेंट या आपका घर या आपकी कोई एक ऐसी स्पेस जो वेकेंट है, you can utilize that to earn money by sitting at home and by providing value to people who are traveling. अब इस चीज़ को पाकिस्तान में रेगुलेट करना, इस चीज़ को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करना, दैट्स द रियल चैलेंज, बट पीपल हैव बीन डूइंग इट. देयर आर मैनी पीपल हु आर स्टिल डूइंग इट. आप लोग आए दिन इंस्टाग्राम पे एड्स देख रहे होते होंगे, एयरबीएनबी, एयरबीएनबी. So Airbnb is kind of one platform. It's kind of a short-term rental platform जिससे आप ये चीज़ कर सकते हैं. But there are multiple platforms जहाँ से आप ये चीज़ कर सकते हैं. कुछ लोग without platform भी ये चीज़ कर रहे हैं who are into hospitality and management. So short-term rental is basically you opt for a listing, you opt for a Yes. कोई घर apartment for a desired period of time. Yes. Like it's not कि आपने जिस तरह पहले ट्रेडिशनल मॉडल लिया था कि जी मिनिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा रेंटल का, Yes. that will be a year or 6 months at least. But Yes. short-term rental is कि आप उसको days के That's a according. very important point, by the way. हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनली ये होता है कि आप ओनर हैं, आप अपार्टमेंट को लॉन्ग टर्म रेंटल पर लगा देते हैं, स्पेशली इफ यू आर ओवरसीज पाकिस्तानी एंड स्पेशली इफ यू आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट देयर टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी. आप अपने टेनेंट्स के हवाले कर देते हैं और फिर ये टेनेंट्स जाने और वो प्रॉपर्टी जाने जो उसका बहाल करते जिसका हैं. हाल करते हैं. ठीक है. और बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि लीगल इश्यूज बन जाते हैं, कब्जा हो जाता है. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वी फेस हियर इन पाकिस्तान. शॉर्ट टर्म रेंटल एक वो सॉल्यूशन है जो हमारी कंपनी लेकर आई है, दैट you sitting in US, UK, Europe, anywhere around the world, we take care of your property and we run it as a short-term rental space with proper standard of like procedures. एक इसको एक proper standardize करके हम उसको run करते हैं as a short-term rental space. Like it's basically the standards इनकी आप बात करें, those are hospitality standards, जो hotel standards. Yes. Like in terms of cleanliness, in terms of experience, in terms of amenities. आप True. मतलब short term rentals में hotel experience ही ले रहे होते हैं. There are two factors to it. Number one thing जो आपने mention की कि hospitality standards हैं. Number two is the legal and as well as the social factor, which is very important. हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर देखा जाए currently Airbnb is being misused a lot. Misused a lot and then आप ऐसे वाक़ये सुन रहे होते हैं लाहौर में, मरी, इस्लामाबाद, everywhere it's very common that Airbnb is being misused a lot. People are using it for drugs. Teenagers को दे रहे हैं without proper verification, without proper guest vetting. Right? That's a problem. And this is an unregulated market, This right? is an unregulated market and there are people. And do you pay taxes like आप tax इसके ऊपर देते हैं Airbnb की कमाई के Yes, ऊपर? Airbnb को हम टैक्स देते हैं because that's the platform we are using. उसके अलावा हम किसी गवर्नमेंट That is अथॉरिटी a को kind टैक्स of a नहीं देते. service fee that Yeah, they that's a charge. service fee for the और platform. लोकल like No. पाकिस्तानी No. उस मॉडल में टैक्स के FBR के मॉडल में it's like नहीं. tax free kind of. Yes. फिलहाल के लिए लोगों की नजर नहीं पड़ी इस पे सही. that ये क्या सोने की चिड़िया है. But once people get to know it, obviously they would regulate it. If they don't regulate it, you know, it might get banned as well if it's not regulated properly. The challenges that you have mentioned, like जिस तरह आपने बताया कि Airbnb के अंदर people use it for these kind of activities, that happens a lot. मतलब आपको stories पता चलती है, and especially with the university students and especially with the elites kind of services which you provide them. मतलब that is one aspect of like challenges. Like True. That this is one is aspect. this is one use of Airbnb. Like True. it's kind of manipulated market of Airbnb कि भाई आप True. इसको इस मकसद के लिए भी यूज कर लें. So that is उसका revenue obviously it's not the true depiction of Airbnb का revenue model. True.
मतलब हो सकता है कोई बंदा जिसको इस मकसद के हम्म, लिए आपके एयरबीएनबी या किसी हम्म, को भी कोई भी लिस्टिंग रिक्वायर्ड है, सो दैट वुड बी वो उसके लिए हो सकता है कि वो 20,000 की अगर आपका रेंट है, तो वो हो सकता है 40,000 भी देने को राज़ी है, because they need it for some specified reason. true. But what about families? Like, what kind of revenue model exists in Okay, families? let me just break it down for you. जैसे कि हमेशा आपकी एक target audience होती है. We have tiers. Like we say, we have certain target audiences. If we say that there are like 20% of the people who use it for a specific reason, but there is 60 to 70% which is the genuine demand. People who are traveling, families who are traveling, people who need it for genuine reasons who Yeah, are that traveling. could be wedding, Yes, people that's wedding. coming. That's relevant to corporate travels. That people who are visiting other cities for medical emergencies. That there's so many other reasons, and Yeah, there they is need a 60 to one-day 7. stay or a two-day Yes, stay, and they cannot very afford a true. hotel, or Hotel, maybe the true. hotel is not nearby. ये सारी Yes, चीजें, I get it. location comes there, then the affordability comes there, the hygiene comes there, the private space factor comes there. There are so many factors to it which can be tapped and which we really want to cater. तो ये जो एक एस्पेक्ट है इसको ही सिर्फ एयरबीएन के साथ एसोसिएट करके इसको एक टैबू बना देना दैट्स समथिंग व्हिच आई एम अगेंस्ट कि इस चीज को ऐसे नहीं करना चाहिए बिकॉज पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म रेंटल स्पेस में देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल पाकिस्तान में देखा जाए सबसे ज्यादा लिस्टिंग्स इस्लामाबाद में है फिर उसके बाद लाहौर में है देन वी हैव लिस्टिंग्स इन कराची देखा जाए Metropolitan areas, यस you have like उसमें हमारा यस listings का बल ज्यादा यस है. लेकिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है वो है गिलियाद साइड, हमारे मरी साइड, नॉर्थ साइड, वहाँ पर वी कैन प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस। Airbnb or a short-term rental space is not just a confined room or an apartment or it's a proper experience which you can provide to people. For instance, now the travel and tourism in Pakistan is also being revolutionized, as you can see. People prefer having their own private space and they prefer having some sort of activity which they can spend time with their family instead of getting a room and just going out for outing. अब लोग वो नहीं प्रेफर करते लोग कहते हैं हमारे पास एक अच्छी स्पेस हो जहाँ पे हम लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें बैठ के बात कर सकें बारबेक्यू कर सकें इंडोर गेम्स हो दोज काइंड ऑफ It's kind एक्सपीरियंसेस of like a family retreat, a private family यस retreat, यस दैट्स not particular to the destination, यस but particular to the listing, जो भी यस वो एग्जैक्टली जगह है. यस I've seen a lot of ads on social media जो कि इस तरह के villas हैं, इस तरह की farmhouses हैं, where people are providing with a lot of services, like कोई horse riding दे रहा है, कोई games वहाँ provide कर हाँ रहा है, और a lot of activities, ट्रू swimming हो रही है, ट्रू सारा कुछ. I get that concept, sir. How come this entire short-term rental model is branded on those challenges जो आपने पहले बात की है, drugs and illicit activities? How come कि Airbnb का जैसे ही नाम आता है, तो लोगों की जनरल परसेप्शन जो है वो इसी के इर्द-गिर्द घूमती है कि इट्स फॉर दोज़ काइंड ऑफ ओके ऑडियंस. हम लोग इस तरह की चीज़ें, हम लोग होटल प्रेफ़र कर लेंगे, हम लोग कोई फैमिली जगह, मतलब those who know, who use these kind of services, for instance Airbnb type services, short term rental, they exactly know कि कौन सी जगह फैमिली वाली हैं, कौन सी जगह इन मकासद के लिए, इन इस तरह की listings हैं, they exactly know. How come this entire industry is being branded upon that those one or two illicit kind of services? Okay, so let me break down that for you. Airbnb की जो ऐप है ना, people who have been traveling abroad or living like overseas Pakistanis, they're very much aware about it, like how it works and how the right use of it. But people here in Pakistan, they are not much aware about it. The people who are aware about it, the elite and the people who have access to it, they mostly use it for this purpose. And the people who genuinely need it, they really don't know how to use that app. So you see that gap like people really don't know how to use that app and they're not much aware about it. हाँ, आपकी फैमिली में कोई यंग बच्चा है, आप हैं, फॉर इंस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं, आई कैन गेट यू एन एयरबीएनबी इन लाहौर, ये एक अच्छा एयरबीएनबी आप करवा के देख सकते हैं, वो कहाँ से देखेंगे? So the people who really want it, they don't have access to it. And the people who have access to it, they really don't want it for a genuine reason. They're manipulating Yes, its use, like वो yes. अपने किसी और मकासद के लिए Exactly. So उसे use that's कर why रहे हैं. it's being labeled by those certain 10 to 20% of the target audience instead of that genuine 80% people who really need it. And I think one of the core reasons is कि जिस तरीके से Airbnb के मॉडल को, इसके रेवेन्यू को सोशल मीडिया पे थ्रू वेरियस पीपल, ब्लॉगर्स काइंड ऑफ
बिजनेसमैन जो इस चीज को ब्रांड कर रहे हैं कि हम्म, दिस इज टू रिवॉर्डिंग, आपका एक अपार्टमेंट से इतने लाखों रुपए बन गए। आई डोंट गेट इट कि एक अपार्टमेंट से कंसिडरिंग कि आपका वहाँ कितना टूरिस्ट आता है, कितना आपके पास गेस्ट आता है, even then you cannot like create that kind of lifestyle which they portray. आई जेन्युइनली बिलीव कि ना आप एक अपार्टमेंट को एक पैसे बनाने की मशीन नहीं बना सकते हैं. It's a very good source of income for a stable kind of income. For instance, if you are a business owner and you have some vacant properties, आप उस प्रॉपर्टी को इतना कर सकते हैं कि वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए. उस Like वो अपने खर्चे खुद हाँ निकाले आप और आपको यस एक पैसिव किस्म यस की इनकम भी देने यस लग आपको जाए। एक पैसिव इनकम which is a good suitable income, not very high, like it cannot be a profit making machine unless you use it for every means, like you start providing it on hourly basis. It cannot be a money making machine. लाइक आपने उसी को Yes, होटल भी बनाया हुआ है, सर्विस अपार्टमेंट भी yes, बनाया हुआ है, मोटेल भी बनाया हुआ exactly, है, और उसमें आप हर किस्म की एक्टिविटी, मतलब देयर exactly, इज नो वेटिंग कि भाई हम ये exactly, करेंगे ये नहीं करेंगे। exactly. Yes, the people who show these kind of numbers, they might be using it by their own way, but those ways are the main reason that this thing is being tagged as a taboo. And the main thing, the main core of the business is to make the property self-sustainable, you know, to take care of the property to maximum, utilize it instead of being vacant, to giving it to people. Like it's like connecting the genuine need and giving them the right property which they really require. कौशल, अभी आपने ये सारा कुछ बताया, हम्म चैलेंजेस के बाद चैलेंजेस को हमने डिस्कस किया है, चैलेंजेस हम्म में कोर चैलेंजेस हमने देखे कि ये इसकी थोड़ी सी इमेज जो है वो हम्म इतनी कोई सूटेबल इमेज हम्म नहीं है एयरबीएनबी को लेके, और अवेयरनेस की कमी है हम्म खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको नीड है और उन तक इसकी रसाई उस तरीके से नहीं है, प्रॉब्ली दे आर नॉट एबल टू यूज इट, और हम्म प्रॉब्ली के एयरबीएनबी से वाकफियत उनकी है ही नहीं, है ही नहीं. ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको एक और एस्पेक्ट से देखें हम्म कि गिवन पाकिस्तान के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है हम्म विच इज़ नॉट दैट डेवलप्ड, अगर आप देखें तो आप गिनती के हाथों पे नाम गिन लेंगे कि जी ये बड़े बड़े होटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको उसमें टीयर्स नहीं मिलेंगे, उसमें कोई उनकी चेन्स नहीं मिलेंगी। देयर आर फ्यू नेम्स जो आप भी जानते हैं, मार्केट में ऑडियंस भी जानती है, रूमी हो जाता है, पीसी हो जाता है, दोज आर द चेन्स जो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को केटर कर रही है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर एयरबीएनबी रेंटल मॉडल हमारे टूरिज्म डेस्टिनेशंस के अंदर, खास तौर पे नॉर्थ के अंदर, एक्सपीरियंशियल कल्चरल काइंड ऑफ एक एक्सपीरियंस दे अपने टूरिस्ट को, सो हाउ डू यू थिंक ये एज एन पोटेंशियल वायबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है? Yes, absolutely. Yes, I think it's a very good kind of a perspective people really need to have, like providing people with experiences instead of जैसा पहले भी हमने बात की, just a room or a space to sleep. You know, experiences is something which people really demand these days. People, लोग जो हैं वो खुद बहुत समझदार हैं. They understand if they are going to spend a week or 3 days with their family, they really want to have the best time, right? They want to make memories. They want to sit and talk instead of just being in their rooms and using cell phones, right? So you need to provide them with the right things. जिस तरह की बात की आपने कि पाकिस्तान में हॉस्पिटैलिटी के 2 से 3 बड़े नाम हैं, तो यहाँ पर भी लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू कि दोज people really cater a certain target audience. Like yes, हाई प्राइस्ड, एंड उन्हीं yes, में अगर उनके कोई टीयर्स हैं तो yes, दोज आर प्रोबेबली yes, केटरिंग टू द मॉडरेट yes. लेवल। And those are the top 10 to 20% people they are catering. A standard room of starting from 15,000 rupees is not something which a normal Pakistani or average Pakistani can afford. Yes. It's someone living in Bahria and DHA. Those can be like, it can be normal for them, but not for those people who are traveling mostly in the northern areas or who travel mostly with the genuine need and demand. वैसे लोग जो टॉप 10% 20%, उनके तो पैसों का मसला ही नहीं है, उनके लिए तो किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, वो कहीं भी रह सकते हैं, वो पीसी में, रूमी में, कहीं भी स्टे कर सकते हैं. वी आर ट्राइंग टू cater the masses, like the middle class, upper middle class and lower middle class, starting from 5,000 to 15,000 के बीच का जो टीयर है, जो मेजोरिटी है. अगर 20% टीयर, वो टॉप 10% जो इलीट का है, जो रूमी और उधर जाते हैं, तो 50% ये भी हैं. और and more than yes, and more than 50% are those जो 5,000 से नीचे में फॉल करते हैं. उधर उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जो 50% की अभी हम बात करें कि हम उनको भी केटर कर लेना, तो इट्स अ ह्यूज मार्केट. और उसके लिए भी देखा जाए, दे ट्रैवल, दे डोंट हैव रिलायबल पीपल और रिलायबल गेस्ट हाउसेज, मोटेल्स और होटल्स के जहाँ पर वो अपनी फैमिली को साथ ट्रस्ट कर सकें बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस.
होटल्स में, गेस्ट हाउसेस में, मोटेल्स में देयर आर वेरी फ्यू रिलायबल नेम्स जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रस्ट कर सकता है किसी को। आप खुद बताएं, आप किसी और शहर में जाते हैं, आप किसी गेस्ट हाउस पे कैसे यकीन कर सकते हैं डिस्पाइट हैविंग सो मेनी स्टोरीज अबाउट द गेस्ट मैं तो हाउसेस। कोशिश करता हूँ कि उन जगहों पे जाऊँ ही ना जी, जहाँ कोई जानने वाला नहीं रहता। एग्जैक्टली। सो पीपल रियली डोंट लाइक टू इंटरैक्ट विद पीपल, दे रियली लाइक टू हैव देयर ओन प्राइवेट स्पेस, चाहे वो फैमिली के साथ हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे वो अपने स्पाउस के साथ हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो। दे डोंट रियली लाइक टू इंटरैक्ट पीपल, दे लाइक टू हैव देयर ओन स्पेस, देयर ओन किचन, यू नो, अ प्राइवेट काइंड ऑफ स्पेस और एक्सपीरियंस। हम उस चीज को बेहतर बना सकते हैं। सो दैट्स रियल द मार्केट इज। अगर आप देखें, एयरबीएनबी की ही रिपोर्ट है, एडीएनए की, पाकिस्तान में पिछले 6 महीने के अंदर 60 to 70% जो लिस्टिंग्स की सप्लाई है वो बढ़ गई है। There are 60 to 70% listings made in the last 6 months. अभी डिमांड नहीं बढ़ी है, बट लिस्टिंग्स बढ़ गई हैं। लाइक लोगों को पता चला है तो उन्होंने लिस्टिंग बढ़ा दी हैं। ऐसा ऐसा डिमांड भी बढ़ेगी जैसे जैसे उनको यूज करना आएगा। अभी पाकिस्तान में वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द यूजेज ऑफ एयरबीएनबी, तो बहुत से मसाइल हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको पेमेंट शुरू में 100% एडवांस करनी पड़ती है। पीपल रियली आर हेजिटेंट टू पे दैट, कीपिंग इन माइंड कि किस तरह से आप उस चीज़ को कर सकते हैं, ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, लिस्टिंग वैसी है नहीं है। फिर they don't know how to cancel it, how to get the refund, the right use of it, because बाहर के तरीके different हैं लोग। So we want to localize that thing, कि जहाँ पर एक बड़ा अच्छा, मेरे साथ एक गेस्ट का एक्सपीरियंस था। वो गेस्ट ने 5 दिन रुकना था मेरे पास। उस गेस्ट ने बुकिंग के लिए मुझे 10% पेमेंट भेजी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कोई भी होटल ऐसा होता है 50% पे बुकिंग कंफर्म करता यूजुअली है। 50% पे यस, करते हैं और ऑन अराइवल आप कंप्लीट यस, पेमेंट कर देते कंप्लीट हैं। पेमेंट करते हैं। बट मैंने ना उस एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसके लिए फिजिबल क्या था, मैंने उसको करने दिया। उसने 10% पेमेंट पे बुकिंग कंफर्म की, इट वाज फिजिबल फॉर हिम। वो आया, उसने बाकी जो है उसने 40% पेमेंट की। ठीक है, लाइक 20% पे उसने बुकिंग कंफर्म की, उसने 40% पेमेंट की, अपने 5 दिन के स्टे में 2 दिन के स्टे की। उसने कहा बाकी मैं आखिरी 2 दिन के अंदर करूंगा, और उसने बाकी जो 40% पेमेंट थी वो आखिरी 2 दिन के अंदर की। सो व्हाट आई रियली गॉट टू नो वाज द साइकी ऑफ द कस्टमर। वो कंफर्टेबल किस तरह है, वो कंफर्टेबल है कि यार 20% पे, अगर 2 दिन में काम हो गया तो हाँ, तीसरे दिन वेकेट कर दूंगा। हाँ, लेकिन तीसरे दिन वेकेट कर दूंगा, बट कीपिंग देम लाइक इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्टर कि आपके जो आखिरी 2 दिन है वो फिर बुक नहीं है। बुक नहीं है वो बुक बिकॉज नहीं है, वी आर नॉट लायबल टू बुक दैट। ठीक है, आखिरी 2 दिन है, वो कोई और आएगा, हम उसको बुक कर सकते हैं अगर आप पहले उसको बुक नहीं कराते। हाँ, जस्ट इन केस यू वांट टू कैंसिल दैट, तो उसकी भी पॉलिसीज होती हैं कि हम आपको 30% 20% रिफंड कर देंगे, बिकॉज वी हैव लॉक्ड दोस डेज फॉर यू। यू नो, पीपल नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा कौसर, अगर ये इंडस्ट्री एज ए शॉर्ट टर्म रेंटल वाली जो इंडस्ट्री है ये इंटायरली अनरेगुलेटेड है, मतलब आई हैव नॉट सीन कि इसमें गवर्नमेंट के कोई लॉज इस तरह के हों जो कि इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, या फिर सोसाइटी बाय लॉज इस चीज़ को सपोर्ट करती हो। लाइक आपने अगर रेंट पे खुद अपार्टमेंट लिया है, आप उसको आगे सब लीजिंग करें, सो दीज काइंड ऑफ, ये एक अनरेगुलेटेड मार्केट है। इस अनरेगुलेटेड मार्केट का मतलब ये है कि द बिजनेस इज एट एट अ वेरी रिस्की एंड इट्स एट अ ब्रिंक कि कभी भी कोई पॉलिसी आएगी, एयरबीएनबी शट डाउन और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ही शॉर्ट टर्म रेंटल्स खत्म। ऐसे ही इसका अल्टरनेट पाकिस्तान की लोकल जो डेवलपमेंट कंपनीज हैं, डेवलपर कंपनीज हैं, आईटी की कंपनीज हैं, या फिर जो इस बिजनेस से एसोसिएटेड है हॉस्पिटैलिटी से, या आप जैसे बिजनेस कर रहे हैं, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? या तो ये इंडस्ट्री को रेगुलेट करे, हुकूमत रेगुलेट करे और बताए कि दीज आर द लॉज, दीज आर द रेगुलेशंस, दिस इज द प्रोसीजर, दिस इज द टैक्स अराउंड इट, ताकि वो चीज़ एक रेगुलेट हो और आपको आपके गेस्ट भी सिक्योर हो, आपकी लिस्टिंग भी सिक्योर हो इन टर्म्स ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली एयरबीएनबी तो मेरे ख्याल से इंश्योरेंस आपको देता है, ट्रू लेकिन लोकल कॉन्टेक्स्ट में भी आपकी चीज़ एक किस्म की इंश्योर्ड होगी, एक किस्म एग्जैक्टली की किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। But if it goes unregistered, unregulated, how come this is a viable business? Because people are jumping into it like wild. I have seen people talking about Airbnb. It's a very and it's mostly because of the social media buzz. It's mostly because of the social media buzz कि जी पता नहीं कितना revenue generate हो रहा है और पता नहीं कितनी जल्दी हमने Mercedes और BMWs बना ली हैं, and it's because of that people are getting into it. So what do you suggest? Like इसका बिजनेस का रेगुलेशन के लिए क्या स्टेप्स लिए जाएं, खास तौर पे वो वॉइसेस जो इस बिजनेस के अंदर हैं, दे शुड टॉक अबाउट इट कि भाई हमारे बिजनेस को रेगुलेट करो, हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें डाल चुके हैं। ये ना हो कल तुम कहो कि एयरबीएनबी नहीं है तो फिर वी आर डन, हमारे पास तो लोकल कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं है जिसके ऊपर हम अपनी सारी लिस्टिंग्स को अपलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली एंड एट द सेम टाइम आपका इस पे मुझे रिव्यू चाहिए, और दूसरा मुझे ये चाहिए कि
इफ इट गोज अनरेगुलेटेड ऐसे ही जैसे ये चल रही है, तो जो हमारी करंट इमेज है एयरबीएनबी को लेके, एयरबीएनबी नोज दिस एज वेल, मतलब उनके जो उनका जो बिजनेस का डिपार्टमेंट्स हैं, दे आल्सो नो कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या इमेज चल रही है, क्या मुश्किलात हैं. दे कुड at any time they could call it a switch off कि भाईजान खत्म, एयरबीएनबी वी आर नॉट ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान. तो इतने रिस्की मॉडल के ऊपर आप किस तरीके से हुकूमत की या लोगों की तवज्जो लाएंगे कि दिस शुड बी रेगुलेटेड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू टेक. Yep. Okay, that's a very good point. I would really like to talk about. जैसे आपने बात की ना कि पाकिस्तान में इसका कोई रेगुलेटेड मॉडल नहीं है and it's very uncertain. पाकिस्तान के अंदर स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस कि कब वो बैन हो जाए, कब आपसे वो चीज़ छिन जाए. हमारे ये तो बड़ा ट्रेंड है, आपने देखा होगा. हमारे कभी ट्विटर बैन हो जाता है, कितने साल हमारे यूट्यूब बैन रही जस्ट बिकॉज अब कंटेंट क्रिएटर्स बने तो उन्होंने कहा इन पे जी टैक्स लगा देते हैं. उन्होंने कहा कि ये क्या मसले हमारे स्टार्ट हो गए, तो हमारे तो इसी तरीके से चलता है. आई एम ग्लैड कि अभी तक एयरबीएनबी पे नजर नहीं पड़ी हमारी अथॉरिटीज. मुझे लगता है इस पॉडकास्ट से उनकी नजर पड़ जाएगी. हाँ, उनकी नजर पड़ेगी तो यहाँ पे ऑब्वियसली देयर वुड बी एन इम्पैक्ट. But as you said, there is no local alternative for it. Booking.com, Airbnb, Agora, इस तरह की multiple websites हैं. These are all international. These are all international. There is no local platform. But let me give you an example of our neighbors. There is this app Oyo के नाम से इंडिया के अंदर, which was launched. इंडिया के अंदर. Yes, इंडिया के अंदर, which was launched, and it was a competitor for Airbnb, और वो यही short term rental spaces से relevant था, and it's one of the leading startups, or I would say now a full-grown company. It started back in 2012 and it's 2025 right now. And Airbnb started in 2002? Yeah, 2008. 2008. 2008. Yes. मतलब वो close by 4 साल बाद. Yes. तो हमारे यहाँ पर देखा जाए तो उसके कोई 14 साल बाद जाकर, या Airbnb के कोई 20 साल बाद जाकर टोटल कुछ ऐसा होगा, close to. So still, it's very unregulated. People are not aware about it. People are not well informed about it because of certain people. They're not, providing the right value because कि वो चाहते हैं उनकी दुकान चमक जाए, वो चाह रहे हैं कि उनके किसी तरीके से लोग आ जाएं, because they're not telling the right perspective to it. For instance, if you're coming to me and I'm teaching you something relevant to अपना apartment कैसे शुरू करते हैं, in return of a certain fee, that's not the real essence of it. Getting it? तो वो चीज भी की जा सकती है, but that's the later part. I think one of the major thing that we lack in Pakistan is कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आप खुद ढलते रहते हैं उस निज़ाम के मुताबिक. आप कभी भी उस बिजनेस की प्रॉब्लम्स की एडवोकेसी नहीं करते कि भाई हमारे बिजनेस में ये मसले हैं, इसको सॉल्व करो. मतलब दैट इज अक्रॉस, आई थिंक अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर, कि आप एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. हमारा ये जनरल परसेप्शन भी है, अगर आप देखें ना, हम कहते हैं कि भाईजान तुम सड़क पे सीधे गाड़ी चलाओ, तुम गाड़ी सीधे चलाओ, तुम अपना बिजनेस अगर वो तुम्हें नुकसान दे रहा है तो तुम अपने आप को इस तरह स्टीयर करो. नोबडी कम्स अप एंड से कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम, बी इट इन द एट द कस्टमर एंड, बी इट एट द गवर्नमेंट एंड, और बी इट एट द बिजनेस एंड. आप उसको एडवोकेट तो करें ना, आप एडवोकेसी तो करें, अवेयरनेस तो फैलाएं एज अ बिजनेस. इंडिविजुअल वॉइसेस अगर इस अनरेगुलेटेड मार्केट एयरबीएनबी के ऊपर उठेंगी, that could be, there are a lot of big names in Airbnb nowadays, and if they all say that this should be regulated, I don't think so कि गवर्नमेंट या फिर कोई ऐसी बॉडीज नहीं होंगी जो इस बात पे तवज्जो नहीं लाएंगी कि जी लोगों का इसमें कैपिटल जा रहा है, we should regulate it, और इसमें कस्टमर जो क्लाइंट्स हैं, लोकल पॉपुलेशन है, उनके स्टेक्स बहुत हाई हैं, लोग वहाँ रह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, तो we need to regulate it. That's the whole point, that people who are doing it, they're doing it on a very huge risk, or they have a very strong maybe they're just doing it for the it's kind of a cash cow for them. Like पैसे निकाल लो, जब बन जाएंगे तो leave. Or maybe they are waiting till time कि जब तक वो अपना इतना infrastructure बना लें कि they develop their own app or something like that. Actually, people who are doing it, they have their own strong backs. For instance, they are ready to deal with anything. जैसे कि इससे साथ affiliated industries हैं, hospitality की है, real estate की है, तो people who are doing it mostly they're affiliated with those industries. ठीक है, जो लोग एयरबीएनबीज कर रहे हैं वो मोस्टली रियल एस्टेट वाले ही कर रहे हैं. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल किसी और जगह से आके उठा के अपना कैपिटल इसमें लगाते हैं, बट दे डोंट सस्टेन इन दिस थिंग. They don't know how to run it. They don't know how the pros and cons, the details, the issues when they are running the business. तो एक ऐसा कोई मसला होता है, कोई ऐसा इशू आता है जिससे उनको ऐसा कोई शॉक लगता है, they back off. So people who are doing it on scale, like 8 properties, 10, more than 10
it's like a proper system. You need to have a proper system in place for that. You need to Teams have a team and for that. You need to have certain standards for that. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान में अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं. पीपल आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे इन लाहौर. पीपल आर डूइंग इट इन अ वेरी गुड वे इन नॉर्थ साइड. दे आर डूइंग इट इवन इन इस्लामाबाद. But there are very few names who are doing it genuinely. But we are talking about masses and scale here. It's just like those few people are targeting a certain class. What I'm talking about here is the masses, the lower middle class, upper middle class. These are the tiers. The genuine demand is there actually. That's where the genuine demand lies. हमारे यहाँ पे Elysium में, Gold Crest में, Centaurus में original demand नहीं है. हमारी ओरिजिनल डिमांड है पीपल हु रियली आर ट्रैवलिंग, जिनको इधर एफ सेक्टर में, जिनको ये जी सेक्टर में, पिम्स के पिंडी पास, की साइड. रावलपिंडी में, बहरिया में, यहाँ पे लोगों को छोटे अकोमोडेशंस अच्छी हाइजीनिक और अफोर्डेबल प्राइसेस में चाहिए. साफ सुथरी चीज चाहिए कम पैसों कम पैसों में, Simple. जिन्होंने आने हैं 3-4 दिन के लिए रुकना है इस्लामाबाद, फिर शायद आगे चले जाएं, कहीं कहीं वापस अपने शहर चले जाएं. दोज आर द जेन्युइन पीपल वी रियली वांट टू कैटर. सो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. और वो चीज़ बहुत अनटैप्ड है अभी तक. पीपल हु आर डूइंग इट, जाहिर बात है, जब आपने They're providing high-end kind of Yes. a solution for accommodation कि Yes. भाई ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है. Exactly. And that same वो hotel industry के किस्म के competition create कर रहे हैं. But Hmm. for the general masses there is no such, मतलब इस level के ऊपर आप हाँ. scale नहीं कर Obviously, if you want to earn more through it, that's the way, because everyone wants to, you know, get the maximum out of those things. But for maximum returns, you have to do everything, you know, by every mean. आप फिर गेस्ट वेटिंग नहीं करते हैं, आप ये नहीं देखते आपका अपार्टमेंट किस लिए यूज़ हो रहा है, आप ये नहीं देखते आप किसको दे रहे हैं, आप सिर्फ पैसे देखते हैं. तो तो दैट्स पैसे कमा रहे हैं लोग. yes. और पैसे इसीलिए तो कमा रहे हैं, because वो सारे रूल्स दे आर लेटिंग इट गो. because once you make certain set of rules, आपको ना करनी पड़ती है. You have to say no. Yes. You have to say no. People are not willing to say no. There is a very viral वो statement of Billie Eilish, वो कहती है कि पैसों को ना करना is the real power, not saying हाँ. yes to money. That's not the power. लेकिन saying no to money is Is power. true. Like obviously कि आप आपके पास ये capacity हो कि भाई this is what I believe wrong. I have believed it my entire life and I'm going to stand on it even if it costs my business, even if it costs my revenue, profit, जो भी है मैं इस पे खड़ा रहूँगा. And that is how probably you brand on something if you are trying to come up with a long term vision. अगर आप Exactly. बहुत short term चल रहे हैं तो फिर आप पैसे तो बना लेंगे. पाकिस्तान में फसली बटेरों वाला काम बहुत ज़्यादा है. Exactly. लेकिन that ain't gonna serve पाकिस्तान की local tourism industry भी, hospitality industry भी, और किसी भी लिहाज से accommodation industry भी. It was wonderful to have you, Kausar, today. And inshallah, we're going to discuss Inshallah. short-term rentals in detail in further podcasts. Thank you for watching this podcast, and I hope you liked it. If you have any comments to share, you can share it in the comment section, and do let us know where we can improve ourselves in terms of our topic selection, in terms of our questions. Thank you very much.